And we're now getting a reaction coming in from the leader of the opposition, the Pratap Singh Bajwa from Punjab, who once again has hit out at the Aam Aadmi Party, saying that how can you have both? On one hand, you have the Aam Aadmi Party wanting to talk of an alliance, trying to come under the umbrella of the IND opposition bloc, and on the other hand, they're arresting Congress leaders. That's the word that's coming in from the leader of opposition, once again questioning the intent and the timing of their leader's arrest. Let's take a look at that conversation. Bajwa ji, how you see this arrest of Sukhpal Singh Khera, because he's been vocal on several issues, and Congress party and other parties are also in support of Sukhpal Singh Khera. At one level, they're talking about an alliance. On the other level, every single day, he's arresting congressmen. He's cursing the Congress day in and day out. And that's why I've been telling my party high command also that the cadres and the leaders of Punjab do not in any way want any kind of alliance with them. If you want a kind of understanding, that understanding could be like Kerala, where CPM and Congress fight each other, but the MPs remain in the same bloc. So here also, because the BJP in Punjab is non-existent, it's a similar case that we have it in Kerala too. So let whosoever wins independently, so they will remain in the same, but we have nothing to do with these guys, because we believe neither they believe in democracy, neither they believe in the Constitution of India. I have a tape with me where Bhagwant Mann himself, when he was the AAP president, state unit president of Punjab, himself has conceded that there is nothing against Khera. It is political vendetta. And he also says that in the coming days you will see Khera would be coming out clear from the courts. And this is what has happened. The Honorable Supreme Court has already intervened. They have given a major reprieve to Mr. Khera in spite of that. So that's the word that's coming in from the leader of opposition in Punjab. Once again, the Congress hitting out at the Aam Aadmi Party, saying, look at the timing of when all of this is happening. This is vendetta politics. On one hand, they want to talk about getting into an alliance. On the other hand, they're arresting our leaders. Let's also bring in our colleague Aman, who in fact is now joining us on the broadcast. Aman, आप हमें बताइए कि जिस तरह के बयान हम सुन रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि ये तो सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है. जो आम आदमी पार्टी वो कह रही है वेंडेटा पॉलिटिक्स की तो कोई बात ही नहीं है, हम तो सिर्फ एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, जिसकी ओर से क्योंकि क्लैरिफिकेशन है और जिसकी ओर से इस पे बयान दिए जा रहे हैं, वो सियासत को पिछले दौर से कई दहाकों से देखते आ रहे हैं. तो उनके जो एनालिसिस हैं, वो अपने एनालिसिस और एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं. अगर प्रताप सिंह बाजवा की बात की जाए तो वो प्रताप सिंह बाजवा इसी सुखपाल खैरा को, इन्हीं भगवंत मान को पिछले दौर से देखते आए हैं. और इस समय जब क्योंकि सुखपाल खैरा की जो इंडिविजुअल पॉलिटिक्स है, वो खास करके क्योंकि काफी वोकल रहे हैं पंजाब के इश्यूज पर, सुखपाल खैरा जिस हिसाब से वोकल हैं, वो शायद उस पर क्लैरिफिकेशन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का है कि उनके वोकल होने की वजह से उसका खामियाजा सुखपाल खैरा को भुगतना पड़ रहा है. और 2017 में यही भगवंत मान थे जिन्होंने ओर से, जो क्योंकि पार्टी चीफ थे, तो इनकी ओर से ही सुखपाल खैरा को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट अलॉट की गई. और यही भगवंत मान थे जो मुख्यमंत्री थे, जिनकी ओर से क्लैरिफिकेशन, एक जो वीडियो जिसका जिक्र प्रताप बाजवा कर रहे हैं कि उसमें वो इसी केस के बाबत बात कर रहे हैं. तो अब ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट से जाकर जो इन्वेस्टिगेशन की बात कही गई कोर्ट की ओर से, तो नई एसआईटी बनाकर उनको अरेस्ट किया गया है. और दैट टू कि चंडीगढ़ के अंदर ना पुलिस को इत्तला इस बाबत की गई कि सुखपाल खैरा से पूछताछ के लिए उनको डिटेन करना है, और बिना इत्तला किए उनको सुबह 6 बजे आकर उनके बेडरूम से उठा लिया गया. और ये एक उनके साथ हो रहा है जो एक विधायक हैं और काफी इश्यूज पर वोकल रहते हैं. तो उस पनाह पर, उस एनालिसिस पर कांग्रेस जो है वो गवर्नर से मुलाकात करने जा रही है. अभी मैं राजा वड़िंग के घर के बाहर खड़ा हूं, जो कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रधान हैं, और यहीं पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा और 8 से 9 एमएलए और जो सीनियर लीडर हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं गवर्नर से मुलाकात करने के पहले, क्योंकि और
और स्टेट्स में अलायंस की बात जी। है, पंजाब में इस तरीके की हर दूसरे दिन की कार्रवाई जो है वो कांग्रेस की परसेप्शन जरूर बदल रही है पंजाब जी। में, कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को और उन पर होती कार्रवाई जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है उससे परसेप्शन जो बन रही है उससे कांग्रेस को नुकसान है। तो इन्हीं जी। चीजों पर, इन्हीं एनालिसिस पर चर्चा भी की जा रही है और राज्यपाल से 6 बजे मुलाकात भी की जाएगी। और प्रताप सिंह बाजवा खास करके जिस बयान पर, खास करके अलायंस पर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो वो काफी सवाल खड़े करता है कि इस तरीके की कार्रवाई से कांग्रेस जो है, कांग्रेस के लीडर जो है वो काफी एग्रेसिव है और अलायंस को लेकर भी अपनी टिक्का टिप्पणियां कर रहे हैं। जी, अमन आप हमारे साथ बने रहिए. As our colleague Aman is also pointing out that this kind of jibes, public jibes between the Aam Aadmi Party and the Congress are leaving a big question mark as far as the future of any alliance between both these parties are concerned. I'll request our colleague to stay on with us. Some other reactions also coming in. अरविंद केजरीवाल जी की मुझे एक स्टेटमेंट याद आती है कि एक बार मुझे पुलिस दे दो फिर देखना मैं क्या करूंगा। तो यही करना था। कोई आदमी अक्यूज्ड है, उसको पुलिस सम्मन करे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराए, वो जवाब नहीं देता उसको अरेस्ट करे। भोले भाले लोगों को भी इस्तेमाल करेगी, अरेस्ट करेगी, उनके ऊपर नाजायज केस डालेगी, क्योंकि जब आप गलत काम कराते हो तो फिर पुलिस भी गलत काम करती है, अपने लिए भी पैसे इकट्ठे करने के लिए भी गलत काम अब करेगी। तो ये मुझे लगता है पंजाब के लिए एक दोबारा से काले दौर की शुरुआत है, जो रोज अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, केवल इसलिए क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। माइंड उनका क्लियर है कि हमने जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कुछ हो नहीं सकता। हाँ, ये जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, कुछ दिनों की परेशानी है, वो तो रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली फैमिली को भी पता है और जनता को भी पता है कि खैरा साहब इसमें पाक साफ होकर बाहर निकलेंगे। बदलाव के नाम पर बनी आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और लगातार सत्ता में आने के बाद बदला बदली और बदलाखोरी पर राजनीति की जा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बदलाखोरी की भावना से सरकारों को काम नहीं करना चाहिए। A person who is a representative of people, who is a MLA, sitting MLA, you are just arresting him in a case which pertains to 2015. So, Shromani Akali Dal strongly opposes any such action which is a result of political vindictiveness, only to just pressurize your political opponents not to speak against the failures of the government. So involved Sardar Bikram Singh Majithia in the same manner. A case in which the trials were concluded, a case there in which there was a High Court monitored sit. So Congress started it, Aam Aadmi Party is following their footsteps.